So, on behalf of Mount Litra Z School, today we have with us and the district head in charge of Anti-Romeo Squad, Sub-Inspector Mrs. Alka Yadav. I request all of you to please give a big round of applause to welcome ma'am. Along with ma'am, we also have Constable Anamika Singh, Constable Deepa and Constable Anuj Pratap Singh, who are there to assist us and to give us a little insight about POCSO Act. Let's welcome them all by giving them a big round of applause. Now I'd like to invite Principal Sir to share a few words about ma'am, and then we can start with the workshop. Thank you, Pramod sir. A very warm welcome to our honorable guest, Sub-Inspector Alka Yadav ji and his team. On the behalf of Mount Litra Z School, we are organizing a small seminar and a workshop related to the few things which is very urgently required, because as the society is evolving, so new laws and acts are also evolving in the country. So Uttar Pradesh government, central government, they are very much keen, and we all have a certain responsibilities to our children for every grade, whether it is school, whether it is a public place, or whether it's a home inside. So what are the measures and what are the safety precautions and what are the guidelines? So all these things will be given a light by Alka Yadav ji today, and in that light we will learn, as well as if you are having any kind of queries also. So you can raise your hand and mic will be there to you, or you can ask question in your question and answer session. So I am very much glad to hear with us the full team that they have given a valuable time to honor us, and this is a day, an auspicious day on Ganpati Ji's day, that this very good program is being conducted in our vicinity. Thank you, ma'am. Once again, clapping. Thank you for sharing words with us, dear Principal Sir. Now I'd like to request Ms. Alka Yadav to please come and share your insights and details about POCSO Act. By the way, how many of you know what POCSO Act is? Anyone? No? Ma'am, over to you. I guess शुरू से शुरू करना पड़ेगा. And we have all the strength from grade 1 to grade 12 available here. Grade 1 से grade 12 तक सारे हैं. Good morning बच्चों. आप सब कैसे हैं? हिंदी आती है सभी को समझ में? बोल भी लेते हो हिंदी? सबसे पहले मैं उस बच्ची से मिलना चाहूँगी जो उस दिन मुझसे आए थे, जिसने हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र वगैरह सुनाया था. मनुश्री, बेटा आना है? हाँ, यही है. एक फोटो पहले मैंने इसके साथ. इस बच्चे की सबसे खास बात पता है क्या है? आपके साथ पढ़ाई के साथ साथ इसको हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और क्या क्या आता है बच्चा? शिव तांडव. भाई शिव तांडव हमसे नहीं आता है बोलना, और ये छोटी सी बच्ची है. आप इसका देखिए कितना टैलेंट है इसके अंदर. अच्छा, साकेत दीदी का देखा था. अच्छा, सचित नाम है उसका. अच्छा, परंपरा भी है. तो आप देखिए कि आप ही के स्कूल के अंदर एक छोटी बच्ची है जिसके अंदर इतना टैलेंट है, और मेरा मानना ये है कि जिसके अंदर ये क्वालिटी है, बंदा या बच्चा कोई भी हो, बहुत आगे तक जाता है वो. जिसको गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, शिव तांडव, इवन कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन होता आता है, आप देखना पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई तो वो करेगा ही, अगर वो इन चीज़ों को भी फॉलो करता है, उस
उसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार आप इस बच्चे के लिए ताली बजा दीजिए। हाँ, एक लड़की ने डांस भी किया था, काफी अच्छा किया था। नाम क्या था? Prachita from grade 5. Give your hand and come. अच्छा, हाँ, इसने बहुत अच्छा किया था। सभी इस बच्चे के लिए ताली बजाएं। जब हम आए थे आपके स्कूल में तो हमने काफी बच्चों का डांस दिया। जो सबसे बेस्ट मुझे जिसका लगा वो इस बच्ची का मुझे सबसे अच्छा। आवाज आ रही है किस तक सबको? अच्छा, सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देती हूँ गणेश चतुर्थी की। हर्षित सर, सभी बच्चों को, सभी स्टाफ मेंबर को, आपके प्रिंसिपल सर को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने जैसे सुना है, सर से बात हुई थी जिस समय मैं आई थी, उस समय काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी और मैंने सुना, सर ने बताया कि हमारे स्कूल के बच्चों ने काफ़ी मेडल्स प्राप्त किए हैं। प्राप्ति तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और इस बात के लिए एक बार तालियों बजाएं। अच्छा, उन बच्चों ने भी क्या था, तीनों बच्चियां बैठी हैं वहाँ पर। हाँ, वो भी थी। हाँ, अच्छा, उन्हीं को फर्स्ट प्राइज मिला है और बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सभी को। खड़ी हो जाओ। आप शायद स्कूल मंदिर में हुआ था आपका प्रोग्राम। हाँ, इन लोगों ने भी, उसमें मैंने देखा था, इन्होंने प्रैक्टिस हमने देखी थी, अच्छी थी बच्चों की प्रैक्टिस। मैं ये चाहती हूँ जितने भी आपकी कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो गेम्स में हैं, डांस में हैं या सिंगिंग में हैं, आर्ट में हैं, जिसमें भी हैं, वो इसी तरह अपने स्कूल का, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट से क्या, इससे आगे भी आप बढ़ें और नाम रोशन करें। अच्छा, 42,000 बच्चों में तो भाई बाकी में आप इसके पात्र हैं। शुभकामनाओं के, आगे कामयाब इसी तरह होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 42,000 बच्चों में अगर आप फर्स्ट आए हैं तो भाई ये स्कूल वाकई में मैं मानूंगी कि एक क्रीम बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तो रहा आपकी स्कूल के लिए जो मुझे बताया गया था, जो मैंने सुना था, वो वाकई में काबिल तारीफ है। अब मैं बात करती हूँ जो जिस उद्देश्य से आज मैं आप सबसे कोऑर्डिनेशन करना चाहती हूँ। एंटी रोमियो के बारे में किसी ने सुना है? किसी स्टूडेंट ने नहीं सुना? चलो हम बता देते हैं। आपके जनपद में एंटी रोमियो टीम गठित हो चुकी है काफी समय पहले। पूर्व में भी थी, लेकिन जब से सरकार बनी है, पुनः स्थापित की गई है। तो आपके जनपद में 23 टीमें काम कर रही हैं। एक जनपद टीम है और 22 टीमें थाना स्तर से हैं। हर थाने में एक टीम मिलेगी आपको। उनका पर्पज ये है कि जो हमारी छोटी बच्चे हैं या महिलाएं हैं या कॉलेज आना जाना जिनका होता है डेली पढ़ाई के लिए या मार्केट वगैरह जाती हैं, तो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस टीम का गठन किया गया है। इसमें क्या है कि हम लोग सिविल में भी रहते हैं और वर्दी में भी रहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमारी बच्चियां सेफ हैं, हम भी सेफ हैं। अगर हमारे बच्चों को किसी तरह से कोई परेशानी है तो इट मीन्स हमको परेशानी होगी। आज का प्रोग्राम हमने यहाँ आपके सर ने रखवाया, हमने भी पहले रिक्वेस्ट की थी आपको अवेयर करने के लिए। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहकाया जाता है, उनको कभी चॉकलेट देके कि बच्चों चलो ये चॉकलेट लो, हम वहाँ चले घूमने चल रहे हैं। होता है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ किडनैपिंग भी हो जाती है बच्चों की, अपहरण छोटे छोटे बच्चों का होता है। उनको बताते हैं कि भाई जैसे कि आप स्कूल में आए हैं पढ़ने के लिए या किसी ट्यूशन में पढ़ने के लिए गए हैं और आपकी मम्मी पापा जो डेली आपको लेने आते हैं वो लेट हो गए हैं, तो आप किसी के साथ मत जाइए। सबसे पहले तो आप ये बात रखिए ध्यान कि हाँ वही वो पता क्या करते हैं आपके साथ, पहले वो आपको फॉलो करेंगे। फॉलो इट मीन्स वो आपकी जानकारी करेंगे कि आपका टाइम क्या है स्कूल में आने का, स्कूल से जाने का। उसके बाद अगर क्लास आप इसके बाहर अगर कोई भी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं
मान लीजिए आप कोई सिंगिंग के लिए अलग से कोई तैयारी कर रहे हैं, या डांस की कोई तैयारी कर रहे हैं, या कोई गेम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई जूडो कराटे सीख रहा है, कुछ भी अगर आप जा रहे हैं या कोचिंग या ट्यूशन कुछ भी करने जाते हैं, तो पहले वो आपको फॉलो करेंगे। जब तक कहते हैं ना रेकी करना, हमारे यहाँ रेकी बोलते हैं उसको, तो वो आपको पूरा अचीव करेंगे कि भाई इसका पूरे की पूरे डेली का रूटीन क्या है। तो रूटीन के अकॉर्डिंग जैसे कि आपके ड्राइवर स्कूल में अगर आपकी बसें होती हैं तो वो उसका नंबर ले लेंगे, फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर से उस दिन मेरी आपके यहाँ ड्राइवर से भी बात हुई थी, उनसे भी मैंने यही कहा था कि आप भी इसमें ध्यान दीजिए कि अगर आप भी अपने स्कूल के आसपास इस तरह की कोई हरकत देखते हैं, आप देख रहे हैं कि बंदा डेली आपके स्कूल के पास आसपास भटक रहा है और किसी बच्चे की आपसे जानकारी चाह रहा है, मत दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसे बताना भी नहीं चाहते तो तुरंत या तो प्रिंसिपल सर को बताएं या हमें बताएं, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी और महिलाओं की सेफ्टी मान लीजिए सबसे पहले है। तो अगर आप अवेयर रहेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो उससे बहुत सी चीजें या बहुत से अपराध अपने आप रुक जाएंगे। तो इस चीज में बच्चों आपको भी ध्यान रखना है। पहले मैं छोटे बच्चों से बात करना चाहूंगी। छोटे बच्चों के दिमाग में क्या भरा जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई, आपसे किसी छोटी बात पर लड़ाई होगी या छोटी बात पर झगड़ा हो गया, आपने अपने मम्मी पापा से कोई झूठ बोल दिया कि हाँ आप स्कूल में थे कुछ नहीं, तो आपको डराया जाता है ना छोटी छोटी बातों को लेकर के। आप डरिए मत, आपसे गलती होगी अपने मम्मी पापा से बता दीजिए, मम्मी आज ना मैं स्कूल में हमने ऐसे से बंक कर दिया था, हम ऐसे नहीं गए थे स्कूल, बता दीजिए आप तुरंत। आप डरिए मत, मम्मी पापा से शेयर कीजिए कोई बात। एक कोई भी कहीं भी आप आते जाते हैं अपने पेरेंट्स से बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके कौन कौन फ्रेंड हैं, आपके क्लास टीचर कौन हैं, आपके स्कूल में कौन कौन ड्राइवर हैं, या कोई भी जो भी है आपके स्कूल में पूरे स्टाफ के बारे में पूरी डिटेल बता दीजिए कि कौन टीचर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सब डिटेल बताइए अपने घर पे जाके। दूसरा मैंने देखा है जैसे कि आप लोग लेट हो जाते हो, मम्मी पापा नहीं आए हैं, लेट हो गए किसी कारणवश, आप इंतजार कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी मम्मी ने हमें भेजा आपको लाने के लिए, आपके पापा जी ने भेजा है, आपके चाचा जी ने भेजा है, ताऊ ने भेजा है, मत जाइए किसी के साथ, स्कूल में वापस आ जाइए अंदर, वहीं इंतजार कीजिए अपने टीचर जो भी स्टाफ मेंबर तो रहते हैं ना अपने स्कूल में काफी टाइम तक जब तक बच्चे नहीं जाते, तो आप तब तक वहाँ रहिए। हालांकि मुझे लगता है सभी बच्चे स्कूल से कन्वेंस है सभी का जाने के लिए, तो आपकी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताने का उद्देश्य इसलिए है कि काफ़ी जगह ऐसा होता है बच्चे माता पिता के साथ जाते हैं, उनका खुद का अपना कन्वेंस होता है स्कूल के बजाय, तो इन छोटी छोटी कोई बातों में बताइए। अच्छा कोचिंग, हाँ कोई। अब दूसरी बात मैं कहती हूँ, बच्चे हमारी छोटी छोटी बातों में, जैसे आपको चॉकलेट का बहाना दे दिया, आपको घुमाने का बहाना दे दिया, आपको मोबाइल चलाने के लिए दे देंगे, चलो आप हमारा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए, दूसरे का मोबाइल आप लीजिए मत, आपके घर में आपके पेरेंट्स का मोबाइल है, आप उसे इस्तेमाल कीजिए, उसी को देखिए। जो भी आपको कोई वीडियो देखना है, कार्टून देखना है, गेम्स देखना, उस पर देखिए। लेकिन अगर आप कोई गेम देख रहे हो, मम्मी पापा से उसको डाउनलोड कराओ। उसका एक कारण ये है कि गेम्स के द्वारा भी साइबर फ्रॉड हमारे काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना साइबर फ्रॉड। आपको गेम्स के द्वारा आपको लिंक दिया जाएगा कि आप ये गेम डाउनलोड कर दीजिए और इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, ये गेम आपके लिए ठीक है। आप अपने मम्मी पापा को बताइए कि मम्मी पापा मुझे गेम खेलना है, आप मुझे गेम दिखा दीजिए कौन सा है। तो अपने मम्मी पापा को सबसे पहले दिखाइए, उनको बताइए कि मुझे गेम डाउनलोड करके दीजिए। अपने मन से कभी भी, चाहे वो गेम हो, कोई वीडियो हो, कोई कुछ भी चीज़ हो, कोई लिंक आपको दिया गया है, जैसे ब्लू लाइन टच कर दिए बोलते हैं, ब्लू लाइन बोलते हैं ना, टच कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए आप ब्लू लाइन टच भी। पहले अपने पेरेंट्स को बताइए, तब उसके बाद खेलें। और अगर जैसे बच्चे मैं देख रही हूँ यूट्यूब बहुत देखते हैं, तो यूट्यूब में आप कौन सी रील देख रहे हैं, कौन सी वीडियो देख रहे हैं, कौन सा गेम्स देख रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं, वो अपने मम्मी पापा को बताइए। आपके लिए कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, सबसे ज़्यादा आपके माता पिता को पता है। इन बातों का ध्यान रखोगे, छोटी छोटी बातों का। दूसरा, लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगी, जो हमारी बड़ी बच्चियाँ हैं, आप कोचिंग जाते हैं या क्लास में आते हैं यहाँ पर, या फिर कभी ट्यूशन वगैरह या एक्स्ट्रा क्लासेस या मार्केट या शॉपिंग वगैरह कहीं भी जाते हैं, आप देख रहे हो बिना वजह कोई बंदा आपका पीछा कर रहा है या आपको किसी ने कमेंट कर दिया है, सबसे पहले उसको वही टोक दीजिए आप, ये आपकी गलत बात है, इस तरह से हरकत मत कीजिए आप। अगर आप शुरुआत में उसको टोक देंगे तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी आगे के लिए। इनकेस अगर नहीं कह पा रहे आप, नहीं आपको लग रहा है कि भाई हम डर रहे हैं, ये डर ही उसका हथियार है, क्योंकि वो खुद डरपोक है, इसलिए वो आपको डरा रहा है। क्योंकि जो बंदा सबसे ज्यादा डरपोक होगा वो दूसरों को सबसे ज्यादा डराएगा। क्यों? उसके अंदर जो
काट लूंगा। लड़के बोलते हैं ना कि अगर तुमसे बात नहीं करेगी मैं नस काट लूंगा या मैं सुसाइड कर लूंगा। ये लड़कों में आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि मुझसे फ्रेंडशिप कर ले, मैसेज करेंगे बिना वजह। यहाँ हुआ है 1-2 स्कूलों में मैंने सुना है, जाती हूँ बिना वजह उसको मैसेज करना, क्या आवश्यकता है भी? कोई लड़की अगर आपसे बात करना नहीं चाह रही है, क्यों करते हो आप बात? अगर आपको उस लड़की को अगर अच्छा लगेगा तो वो अपने आप आपसे बात करेगी। फ्रेंडशिप करना ना करना ये उस लड़की का डिसीजन है, आपका डिसीजन नहीं है। गलती आपकी है, आप उसे पसंद करते हो, उस लड़की की गलती नहीं है। आप दोस्ती बना के रखिए ना, आप दोस्त बनिए एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, फ्रेंड बनिए। लेकिन फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि उसको आप दूसरी दिशा में ले जाएं दोस्ती को। लड़कियां फिर भी सही दिशा में चल रही है, भाई मेरा दोस्त है। लड़कियां कह रही भाई मेरा इजली बोलती है, वो मेरा दोस्त है, उन्हें कभी दिक्कत नहीं होती। लेकिन लड़कों को क्या लगता है, अच्छा मेरी वो दोस्त है तो वो सिर्फ मेरी दोस्त है, इसका मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता है, एक दोस्ती रिश्ता होता है जो सबसे पवित्र और सबसे अच्छा रिश्ता होता है। इसको बना के रखिए। जो आपके साथ के लड़कों में जो एक टैलेंट होता है ना आपस में, भाई कोई मैंने जैसे बताया गेम्स में कोई अच्छा है, आप उसके बारे में बताइए कि सर इसका लड़के का गेम ये बहुत अच्छा है। आप उसको उसका जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाने में कामयाब दिलाइए उसको। ये ना कि अगर किसी बंदे के अंदर कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई गेम्स में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, आप उसको डिमोराइज मत कीजिए। तो ये चीज़ें अगर आप अभी से समझेंगे तभी आप कामयाब हो जाएंगे आगे चलकर। तो एक दूसरे का सभी, आपके खुद की स्कूल की लड़कियां हैं, आपकी छोटी छोटी बहन ये बच्चियां हैं आपकी स्कूल में, आप खुद इनका ध्यान रखिए। आप खुद भी अगर रहिए इन चीज़ों में कि भाई आपके कॉलेज के आसपास अगर इस तरह की इलीगल एक्टिविटी में कोई आदमी आपको दिख रहा है कि बिना वजह आपकी स्कूल के आसपास चक्कर लगा रहा है या कोचिंग के आसपास या ट्यूशन के आसपास कोई चक्कर लगा रहा है, शिकायत कीजिए तुरंत। लड़कियां नहीं कर पाती हैं लेकिन आपको तो जानकारी है, तो आप कीजिए काम। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अच्छा, दूसरा अब मैं बात करती हूँ एंटी रूम में जो हेल्पलाइन हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। हेल्पलाइन नंबर किसी को पता नहीं है? कौन कौन से है जी बताइए। नहीं, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। कोई नहीं बोलते हैं। ये 1098 है आपका चाइल्ड। बताओ। अच्छा ठीक है। अब मैं आपको बता दूं 100 डाल अब नहीं है काफी समय से। हाँ मुझे पता तो है बच्चों को, लेकिन मैं बताती हूँ अब क्या है। 100 पहले जो 100 डाल थे ना 100, अब वो नहीं है। पुलिस का नंबर कितना है? 112। सर इस पर लिख दीजिए। अब 112 नंबर है, ये पुलिस आपातकालीन नंबर है। अगर आप देखते हो आप किसी मुसीबत में हैं, मोबाइल तो सभी के पास होगा, सभी रखते हैं मोबाइल। अगर आपको लगता है कि आप कहीं हाँ वही इंग्लिश लिख दीजिए, पुलिस इमरजेंसी नंबर, बच्चे उसे समझेंगे। आपातकालीन नंबर पता नहीं नंबर, ये आपको पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। समझ में आ गया आपको? आपातकालीन पता नहीं समझे आगे बात में। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, या आप अपने स्कूल के आसपास इस तरह से कुछ देख रहे हैं, आप अगर कुछ भी आपको जरा सा भी शक हो रहा है किसी चीज को लेकर के, आप पुलिस को फोन कर दीजिए। अगर आप किसी को नहीं बता पा रहे, पुलिस को फोन कर दीजिए कि सर ऐसे इस क्षेत्र में या इस एरिया में, वो जगह आपको बतानी पड़ेगी। मान लीजिए आपके स्कूल के आसपास का क्षेत्र का कोई मैटर है, आप पता है सर ये एक स्कूल की लोकेशन है और यहाँ पे ये मामला पड़ा है। अगर आपको उस चौकी का या उस थाने का नाम पता है तो आप उस चौकी उस थाने का नाम बताइए। वो आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आप डिस्ट्रिक्ट बताइए। उनसे बता दीजिए सर हमारे बारे में मत बताना, हमारा नाम आप गुप्त रखना, यानी कि सीक्रेट, हाइड रखें आपका नाम। आगे समझे? तो आप बता सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। दूसरा है 1098, ये आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। इसमें आप देख रहे हो कोई बच्चा है जिससे मजदूरी कराई जा रही है या उसको काम पे लगाया गया है, या आपको पता चला कि कोई लड़की जिसकी उम्र अभी शादी के लायक नहीं हुई है, उसकी शादी कराई जा रही है जबरदस्ती, बिना वजह, बिना उसकी परमिशन के। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि सर ऐसे से वो लड़की उस मोहल्ले की, उस गांव की या उस जगह की रहने वाली है, उसके माता पिता उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं।
या आप देख रहे हैं कोई मजदूरी करा रहा है जबरदस्ती अपने बच्चे से काम करा रहा है, 1098 पर कॉल कीजिए और तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। उस पर आपको करना यह है कि उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको उसकी डिटेल मालूम है, आप डिटेल दे दीजिए। डिटेल तो आपको देनी पड़ेगी, तभी हम उसमें कामयाबी कर पाएंगे। हाँ से दूसरा नंबर है 108, ये एम्बुलेंस नंबर है आपका। कहीं आप एक्सीडेंट देखते हैं या आपके घर में आपके आस पड़ोस किसी को जरूरत है एम्बुलेंस की, बिल्कुल आप कहते हैं ना बहुत आवश्यक कार्य है आपका कि भाई एम्बुलेंस चाहिए ही चाहिए, तो तुरंत इस पर कॉल कीजिए। एम्बुलेंस का टाइम कितना सर आने को अनुज भाई, कितना टाइम लगेगा? 5 या 10 मिनट? अच्छा, ये आपका सिटी में 5 मिनट का टाइम है पहुंचने का और देहात क्षेत्र में आपका 10 मिनट का। कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है ट्रैफिक की वजह से, तो आपको तुरंत इसकी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अब आता है वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर, वो है 1090। मान लीजिए कोई लड़का आपको मैसेज करके परेशान कर रहा है, फोन करके परेशान कर रहा है, या आपका पीछा कर रहा है, या आपको कोई कमेंट कर रहा है, किसी भी तरह की कोई इस तरह के आपके साथ कोई अभद्रता, अगर आपके अभद्र व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है किसी के भी द्वारा, वो कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपके स्टाफ का हो सकता है, आपके स्कूल का हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी XYZ, अगर आपको किसी भी तरह से ह्यूमिलेट किया जा रहा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है लड़कियों को, आप सीधा कॉल कीजिए, उनको अपनी शिकायत बताइए कि सर ऐसे से मुझे समस्या हो रही है, मैं काफ़ी समय से परेशान हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपसे यही बात की थी कि शुरुआत में उसको ब्रेक कर दीजिए किसी भी बात को। अगर आप ब्रेक करेंगे तो आगे तक मुझे नहीं लगता कभी आपको इस तरह की दिक्कत आएगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं कुछ कह पा रहे हैं, कॉल तो कर सकते हो ना आप लोग, भाई फोन सभी के पास है, फोन करके बता दीजिए कि हमको ये समस्या है। वहाँ पे भी एक महिला बैठी होंगी, वो भी पुलिस में ही होगी, वो आपकी समस्या सुनेगी। सबसे पहले उद्देश्य यही रहेगा कि उसको समझाया जाए, पहले उसको वार्निंग दी जाएगी, समझाया जाएगा, वो नहीं मानेगा तो दिमाग से ये निकाल दें कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो नाबालिग भी है ना तब भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरह की हमारे यहाँ बोलते हैं छिचोरी हरकतें, इसको ये बर्दाश्त नहीं होती हैं। सहोदरे शब्द सुना है किसी ने? सहोदरे का मतलब होता है आवारा टाइप के लड़के। तो आप तो काफ़ी मैंने सुना है कि अच्छी फैमिली से हैं, एजुकेटेड पर्सन आप लोग हैं, तो भाई इस तरह की हरकत अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग देश को, इस समाज को आगे बढ़ने में हमारा सहयोग करें और जब भी कोई दिक्कत आती तो बताएं। अब दूसरा आता है मेरे पास पोक्सो है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये है कि भाई हमारी उम्र अभी है ही नहीं तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मैं आपको पूरी डिटेल तो नहीं दूंगी, सिर्फ छोटी सी बात बताऊंगी कि छोटे बच्चों के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, उसमें अलग अलग धाराएं दी हुई हैं। उसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि आपका अपराध किस किस्म का होगा और अपराध के अकॉर्डिंग आपको क्या सजा मिलेगी। मैं डिटेल नहीं दूंगी जानबूझ करके, उसमें पूरी डिटेल है। उसमें अलग से आपका एक कोर्ट है, जैसे दूसरे लोगों के लिए होता है कोर्ट, उसमें भी आप लोगों के लिए कोर्ट है बच्चों के लिए। एक अलग से कारावास है जिसको हम बोलते हैं सुधार गृह, आपके मथुरा में है यहाँ पर कचहरी की तरफ। अगर कोई बच्चा इस तरह से वो रास्ता भटक चुका है तो उसको एक तरह से उसके सुधार के लिए वहाँ उसको रखा जाता है कि इसमें सुधार हो जाए। अगर वो उसके बाद उसका अगर सुधार नहीं होता है तो उसके सिंपल सी बात है, जहाँ सीनियर जो अपराधी होते हैं जो नाबालिग से ऊपर के स्तर के आते हैं, तो उसका सर उसमें चलता है उसका कोर्ट पूरा। अगर वो सुधार नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है उसकी ज़िंदगी तो नरक हो ही जानी है। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि अपनी तरफ से गलती ना करें, हमारा उद्देश्य आपको समझाने का है। अब आप इसमें कितना समझेंगे कितना नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा हमारे पास आया है साइबर क्राइम, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है साइबर क्राइम। साइबर फ्रॉड तो आपने सभी ने सुना है। कोई बता दे इसके बचाव के लिए 1-2 पॉइंट बता दे मुझे कोई भी। अगर आपको बचना है साइबर फ्रॉड से तो कैसे बचेंगे? कोई 1-2 पॉइंट कोई भी बताए, कोई भी। If anyone wants to contribute, yes, come here. I guess all of you must have heard about cybercrime, and if anyone else wants to contribute, please come. To track the number that we have. नहीं, नंबर नहीं बताना है। अगर जैसे कि मान लीजिए कोई साइबर फ्रॉड चल रहा है जैसे, तो उसमें अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे आप? नहीं, नंबर ट्रैक तो सिर्फ बचाव के लिए कैसे करेंगे आप अपना खुद का बचाव कैसे करेंगे? वो तो बात की क्रिया है ना आपकी। उससे पहले बचने के लिए आप क्या क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? छोटी छोटी बातें हैं वो अगर पता है
Yes, we do not have to share the OTP, and we do not have to share our personal information with them. बहुत अच्छा बताया, मेरी तारीफ तो बहुत अच्छी है। आपके स्कूल के बच्चे काफी टैलेंटेड हैं। ये बच्चे ने बिल्कुल, और कोई बताएगा इसके अलावा? कोई और? Anyone else who would like to come and contribute? इस बच्चे ने वाकई बहुत अच्छा बताया, OTP नंबर। Yes, beta, come. So I guess juniors are more vigilant than seniors. Seniors are simply sitting and बच्चे बता रहे हैं, आपको क्या हो गया? We do not have to share our phone number, and we do not have to share our information. मोबाइल नंबर भी किसने बताया? कुछ नहीं करना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और कोई? चलो थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। जैसा इन बच्चों ने बताया था, सबसे पहले अगर आप अपनी फेसबुक पर कोई आईडी बना रहे हैं, आप उसमें मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर को हाइड कर दीजिए, और जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको मत डालिए उसमें, जैसे बच्चों ने बताया वो मत डालिए। दूसरा, अभी आपकी उम्र वैसे है नहीं फेसबुक चलाने की, इंस्टाग्राम चलाने की या ट्विटर चलाने की, कोई भी ऐसा है, पर आप मानेंगे तो है नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं हमारे। अगर आप चला भी रहे हैं तो फिर उसमें आप सेफ्टी रखिए अपनी। सबसे पहले उन बच्चों ने बताया, इस बच्ची ने बताया अपना जो पर्सनल नंबर है वो शेयर ना करें, उसको हाइड कर दीजिए अगर आपने डाला है। दूसरा, उस बच्चे ने बताया था अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के फोटो डाले कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रोग्राम कहाँ हुआ, किस जगह पर वो जगह है, वो मत डालिए उसमें। फोटो डाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन उस पर डिटेल में डालिए कि प्रोग्राम कहाँ आपने किया। दूसरा, आप देखते हैं आप ट्रैवल करने जाते हैं, आप उस पर डाल देते हैं भाई हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ आए हैं, यहाँ किस रेस्टोरेंट में गए, बहुत हर छोटी छोटी बात आप उस पर डालते हो, वो आपकी इन्हीं इंफॉर्मेशन को उठाएंगे और आपको फॉलो करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने कई बार एक स्कूल पहले भी एक बार बताया था, एक पेरेंट्स थे, उनको एक आदत बन चुकी थी, उनके एक बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने क्या किया, उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी डेली का रूटीन पूरे दिन भर का उस पर डालते थे फेसबुक पर। बच्चे का किडनैप हो गया, पता नहीं चला बच्चा कहाँ गया, जानकारी की किसी से दुश्मनी, किसी को लड़ाई झगड़ा, कोई रैंसम मांगी गई हो, कुछ नहीं आया, बच्चा किडनैप हो गया, कोई पता नहीं चला। ये लगा लीजिए, ऐसी स्थिति में पुलिस बड़ी असहज महसूस करती है, क्योंकि या तो दुश्मनी हो तो दुश्मनी से हम पता लगा सकते हैं भाई इनकी दुश्मनी आपस में ये है, या कि कभी किसी का इनसे लड़ाई झगड़ा हुआ तब पता रहता है, या किसी ने उसको वैसे फॉलो किया हो तब पता रहता है भाई इन लोगों ने फॉलो किया है। लेकिन अगर आपको मोबाइल के थ्रू या आपकी खुद आईडी के थ्रू अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये लगा लीजिए मिल तो गया उनका बच्चा, पर उसमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, उनसे फिर पूछा गया हर एक छोटी छोटी बात कि आपकी रिश्तेदारी कितनी है, आप करते क्या हैं, आपकी इनकम क्या है, किसी तरह की कोई पहले कोई दुश्मनी रही हो, या आपके परिवार की कोई दुश्मनी रही हो, या आपके जहाँ आप सर्विस करते हैं वहाँ कोई अपवाद हुआ, मतलब हर एक पॉइंट पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कहीं कुछ नहीं मिला, हाथ खाली पुलिस के बिल्कुल। फिर धीरे धीरे बातें चली कि भाई अगर उनके पास इंफॉर्मेशन आई है आपके बच्चे की पूरी एक्टिविटी की, क्योंकि जिस तरह से उसकी किडनैपिंग हुई थी बच्चे की, सिंपल सी बात है, उनको हर एक बारीक चीज पता थी उस बच्चे की, कि कब वो जाता है, कब आता है स्कूल में, कब क्या खाना खाता है। मैं ये बता रही हूँ, अगर वो कपड़े भी चेंज कर रहे थे उसकी डिटेल्स उन्होंने डाली थी उस पर। अगर बच्चे के कपड़े भी चेंज हो रहे हैं, शॉपिंग भी उस बच्चे के लिए कर रहे हैं तो वो भी डाल रहे हैं उसमें। पहले वो तो आवश्यकता है कि इन चीज़ों की, एक दिखावा हुआ ना, आप दिखावा कर रहे हो, मत कीजिए। एक नॉर्मली फोटो आप डाल रहे हैं, कोई ओकेजन आपकी है वो चलता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें इस तरह की एक्टिविटी आप डाल रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल वो फॉलो करेगा। अगर देखो जो भी अपराधी होगा, अगर किसी को अपराध करना है, अपराध करने से पहले वो पूरे का पूरा आपको फॉलो करेगा, उसको पहले ही सोच लिया उसने कि मुझे अपराध करना है, और जिसने ठान लिया वो करेगा ही करेगा। अब उसके बाद उनसे पूछा गया, उनका जब फेसबुक पर उन्होंने बताया कि सर हम ऐसे फेसबुक पर अपने बच्चे की डिटेल मांगते हैं, ऐसे से हमने डालते थे डेली, तो उसमें उनकी फ्रेंड लिस्ट जितनी भी थी वो चेक की, उसमें कितने कितने उनको लोगों को लाइक करते थे, कितने डिसलाइक करते थे, क्या पूरी डिटेल पुलिस ने निकाली।
तब कहीं जाके उस किडनैपर का पता चला। अब आप लगा लीजिए कि किडनैपर कितने शातिर होते हैं। और किडनैपर क्यों? जो अपराधी होते हैं और सबसे ज़्यादा साइबर अपराध, ये तो आप इनका माइंड का पता भी नहीं लगा सकते कितने तेज दिमाग के होते हैं। लोकेशन इनकी यहाँ आएगी, ये यहाँ है, लेकिन ये यहाँ होते नहीं है, पता चले विदेश में बैठे हैं। आपके पास अब सबसे ज़्यादा चल रहा है कि भाई करोड़पति वाला चल रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास भी आए दिन मैसेज आते हैं इसके भी करोड़पति के कि आपकी लॉटरी लग गई है, और कहते हैं भाई इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और पहले आप हमें पैसे इतने डाल दीजिए और अपना हमें अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका फोटो, आपका मोबाइल नंबर। हाँ, फ्रॉड होते हैं ना ये। बच्चों को सब मालूम है, ये बच्चे हमसे बहुत तेज है भाई। वैसे मुझे अच्छा लगा कि पहला एक स्कूल ऐसा मिला है जहाँ बच्चे इतना हमसे तो वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना बताना पड़ेगा इसमें। आप पहले बहुत एक्टिव हैं। अब बच्चे बताइए, आप बच्चे, हाँ पूछो पूछो पूछो। नहीं, कभी नहीं, कभी भी कोई भी पर्सनल चीजें, पर्सनल डेटा जो भी है, क्योंकि ये जो साइबर फ्रॉड होते हैं ये पता क्या करेंगे, आपकी फेसबुक आईडी का क्लोन बना लेंगे, उससे दूसरे आपके फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजेंगे और किस तरह की उससे चैटिंग कर रहे हैं या उसको गाली गलौज कर रहे हैं या आपसे पैसे मांग रहे हैं उधार, आपने दे दिया, आपके दोस्त को पता ही नहीं है कि आपके द्वारा पैसा मांगा गया, वो आपसे जब बाद में पैसे मांगेगा पता चला आपने पैसा तो मैंने उसने मांगा ही नहीं था। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। दूसरा, आप लोग एटीएम इस्तेमाल करते हैं? आप लोग, आपके पेरेंट, हाँ वही मैं धीरे धीरे बताऊंगी। एटीएम अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, आपके पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात कीजिए, अपने पेरेंट, हालांकि आपके पेरेंट्स तो घर एक्टिव होंगे, मुझे ज़्यादा पता नहीं, मुझे देहात क्षेत्र में ज़्यादा बताना पड़ता है, फिर मैं बता देती हूँ। जब भी आप एटीएम इस्तेमाल करें, एटीएम के अंदर जा रहे हैं तो किसी और की एंट्री वहाँ होने ना दें। दूसरा, अगर कोई खड़ा भी है, कोई भी अगर आपके पेरेंट्स को बता देना आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, एक तो जो पिन डालते हैं उसको बंद करके रखें, ऐसे हाथ धर लें उस पर, वो किसी को देखना ना दें। दूसरा, किसी से ये ना कहें कि भाई चलो हम पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, आप हमारे पैसे निकाल के दे दीजिए, एटीएम चेंज कर देगा तुरंत। और ये हुआ भी है। हम जब महिला थाने में थे तब कई केस हमारे पास आए थे कि उनके एटीएम ही चेंज हो गए। तीसरा, एटीएम पे आपके कई तरह के नंबर्स होते हैं। मैं अपना एटीएम दिखा देती हूँ आपको। एक आपका आगे नंबर दिया हुआ है, एक ये, एक आपका 4 अंक का पीछे है ये। इसकी डिटेल कभी किसी को मत देना, कभी शेयर मत करना, एटीएम अपना देना ही मत। क्या बच्चे? अच्छा। दूसरा, एक सबसे पहले मैंने बात की थी लॉटरी लगने की। भाई आज की दुनिया ऐसी है कि कोई 10 रुपए भी आपको दे देगा, आपको 10 पैसे भी उधार दे देगा क्या? आज के जमाने में उधार तक कोई लोग, उधार तक इंसान देना पसंद नहीं करता है, तो लॉटरी तो कोई कब देगा? क्या आपने कभी करोड़पति में कभी पार्टिसिपेट किया है? कोई ऐसा आपके पास आया हो, फॉर्म आया हो, आपने फॉर्म भरा हो? जब आपने कहीं ना पार्टिसिपेट किया है, नहीं कहीं फॉर्म फिल किया है, तो आप कैसे उनकी बातों में आ सकते हैं? मत आइए बिल्कुल भी। कहीं कुछ करोड़पति नहीं है, ये सब फ्रॉड है आपको फंसाने के लिए। दूसरा आता है आपके पास फेक कॉल। आपके पेरेंट्स के पास आया होगा कि आपका एटीएम बंद किया जा रहा है। जी बच्चे, क्या आया था? एक एक करके बताइए, एक एक करके। पहला आप खड़े हो जाइए, बताइए। सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। और आप बताओ, सो के कैसे जाग रहे हैं बच्चे, कैसे सो रहे हैं? हाँ धीरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं मतलब ये, हाँ तो शांत से बच्चे की बात सुनो। हाँ बिल्कुल सही, अपना नाम, अपने रिलेटिव किसी को नहीं बताना चाहिए। बहुत अच्छा बताया बच्चे। भाई एक बात बताओ मुझे, ये छोटे बच्चे इतना बता
अच्छे, तुरंत भाई सही। ताली बजा भाई इस बच्चे के लिए। नहीं, फ्लोर नंबर कैसे करोगी कि ये फ्लोर नंबर है? कोई डिजिट होगी ना? अच्छा आता है इसमें? भाई बच्चे बहुत तेज है, ट्रू कॉलर से पता कर लेती। एक मिनट सब पीछे पहले शांत हो जाइए सभी, एक एक करके सब। हाँ बच्चे बताना। बहुत अच्छे। माय गॉड, ऐसा तो सीखो बच्चों से। एक मिनट सही। एक मिनट देखो, पहले सब शांत हो जाए। जो बच्चा बता रहा है पहले आप उसकी शांति से बात सुनिए, ठीक है? एक एक करके सबका टर्न। हाँ बच्चे बताओ। बहुत बहुत सही, नहीं देना चाहिए अपना नंबर, बिल्कुल सही। आपके साथ हुआ है? अच्छा ये मतलब क्या कहा था आपसे? एक मिनट सब शांत हो जाइए। ओटीपी आपने दिया? देना भी मत, ओटीपी तो बिल्कुल देना ही नहीं है बिल्कुल। हाँ बच्चे बताओ। हाँ बच्चे बताओ। बहुत सही किया। कभी भी देखो, सबसे पहले मैं आपको ओटीपी बताती हूँ, मैं आपकी बात सुनती हूँ। जैसे सभी बच्चों ने कहा है कि शांत शांत शांत। अच्छा एक मिनट देखो, आप ही के स्कूल के बच्चे हैं, एक एक करके सबकी बात सुनोगे आप प्यार से। हाँ बच्चे आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हुआ उसमें? आप बाहर आओ, बताओ क्या हुआ? एक थोड़ा शांत हो जाओ, बच्चा कुछ बताना चाह रहा है, शांत हो जाओ। अच्छा ये बताओ क्या हुआ? वो क्या था? अच्छा माइक नकल कर रही थी, तो फिर उसके बाद मैं खो गई वहाँ पे। और एक उनकी दीदी ने उनकी मम्मा फादर भी थे उनके साथ, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रखेंगे अपने साथ। तभी मेरी दादी की सिस्टर आई, उन्होंने कही कि मैं इसको जानती हूँ, ये मेरी बहन की बेटी है, इसको मेरे को दे दो। तो उन आंटी ने कहा कि आप इनको जानती हूँ? मुझसे कहा आंटी ने। तो मैंने कहा मैं इनको जानती हूँ, मेरी दादी की सिस्टर है। देखो अब जैसे इस बच्चे ने बताया था, वाकई में ये केस होते हैं। अभी पता है बहुत से लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको अपने घर रखेंगे या हम आपको अपने घर छोड़ देंगे। जैसे इस बच्ची ने बताया, जिस इंसान को आप जानते ही नहीं हो कभी उनके साथ मत जाइए, ठीक है? और अगर आप किसी को परिचित को देख रहे हैं और बिल्कुल क्लोज है आपके, दूसरा जो भी अगर आपके आस पड़ोस के लोग हैं अगर वो भी परिचित हैं, वो भी ये कहेंगे कि हाँ भाई चलो हम तुमको घुमाने लेके चलते हैं, आपको घुमाएंगे, आपको मोबाइल देंगे, कभी मत आना। क्या नाम है दिनाय? सक्षम। एडी। अच्छा एक मिनट Put down your hands, everyone. Put down your hands. पहले एक एक करके Ready? पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आजकल बच्चों को मैंने क्या देखा है, मम्मी पापा ने डांट लगा दी, गुस्सा इतना तेज आया घर छोड़ देंगे। गुस्से में करते हो ना आप लोग? क्या है ना? देखो हमारी मम्मी हमें भी डांटती थी, लेकिन हाँ हमने घर नहीं छोड़ा, हम अपनी चाची के घर चले जाते थे गुस्से में। ये तो हमने भी किया है, क्योंकि हम भी बच्चे रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम बड़े हो गए। तो ये छोटी छोटी हरकतें हमने भी किया है कि अगर मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, इवन खाना तक हम लोग छोड़ देते हैं।
सुधारने के लिए, ठीक है? खाना नहीं खाना, मत खाओ, भूखे रहो। आज के पेरेंट्स बिल्कुल नहीं करेंगे, अरे मेरा बच्चा भूखा है, तो आपको बढ़ावा मिलता है इन चीज़ों से। हमारी मम्मी ने कभी नहीं कहा कि तुम भूखे तो रहो भूखे, जहाँ जाना जाओ, मम्मी देखते कहाँ जाओगे, क्योंकि हमारी मम्मी को पता था चाची के घर से जा सकती है, इसके आगे नहीं जाएगी। लेकिन आज के बच्चे पता क्या करते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। ये गलत है। अगर आपके मम्मी पापा अगर डांट रहे हैं तो और आपके बेनिफिट के लिए आपको डांट रहे हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप गलत रास्ते पर जाएं। हाँ बच्चे बताओ, इधर कोई कुछ कहना चाह रहा था? मैं जिसका मैं बोलूँगी वो खड़ा होकर बताएगा। ये बच्चा नहीं है, हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ मैंने यही बताया था कि कभी किसी के साथ मत जाइए। तो वैसे ना मैंने एक चीज देखी छोटे, अच्छा सुनो भाई, जूनियर बच्चे तो वाकई में टैलेंटेड हैं, ये सीनियर बच्चों को क्या हो रहा है? वो भैया मास्टर पे चुपचाप सारी बातें सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं अंदर के अंदर। मास्क करो जरा, मम्मी शक्ल देखिए भाई आपको, डालो मास्क। अच्छा ओ अब मैं कुछ आगे बताऊं आप लोगों को, फिर इसके बाद बात करते हैं। कुछ बताएं बाद में। अभी पहले मैं कुछ बता दूं आपको, उसके बाद आप मेरे की बात सुनिए। ऐसा हो कि चक्कर में मैं भी हो जाऊंगा, क्या बताएं बेटा प्लीज क्वाइट डाउन एंड लिसन टू मॉम प्लीज। ये अच्छी बात है, सुन रहे हैं बातों को ध्यान। ये तो रहा साइबर केस मैं जो बता रही थी। दूसरा अभी तो लॉटरी वाला हो गया, बच्चों ने बता दिया कि किसी के साथ नहीं जाना है, किसी को अपना नंबर सेंड नहीं करना है, किसी को अपनी पर्सनल डिटेल सेंड नहीं करनी है। इसी तरह एक वोटर आईडी के लिए कॉल आ रहा है, बिजली बिल के लिए कॉल आता है या विदाउट इंटरेस्ट के लोन के लिए बात आती है। ऐसे फ्रॉड भी काफी आते हैं। तो कभी भी किसी के, मेरा ऑल ओवर कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है, किसी के बहकावे में आप मत आइए। और दूसरा मैंने लड़कों और लड़कियों में एक चीज देखी है, एक व्यूज पाने के लिए जो रील्स बनाते हैं, अगर रील आपको बनानी है ना तो मोटिवेशन बनाइए, या कोई आपको उसमें कोई जानकारी दे रहे हैं वो दीजिए। खाली व्यूज पाने के लिए, फॉलोअर्स पाने के लिए आप ये करें। बच्चे अभी आप हाथ नीचे कर दीजिए, कभी काम मत कीजिए। उस दिन मैं केआर कॉलेज में जा रही थी तो बंदे वहाँ स्कूल के अंदर ही रील बना रहे थे। आप वहाँ पढ़ने आते हो, रील बनाने के लिए आते हो? पढ़ने आते हो ना, पढ़ाई करोगे ना। अच्छा आप पढ़ना क्या चाहते हो ये बताइए आप, जो बाद में दिव्यांशी, प्राची और वंशी का तीनों खड़े हो जाओ। तीनों आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ। अरे थोड़ा शांत हो जाओ बच्चे, आगे आ जाओ तीनों।
am Vartika from grade 12, and I want to be the creator, not only the consumer. I want to create new things to the earth so that it can benefit the environment as well as the human beings that are there. Thank you so much. Good morning all of you. My name is Divyanshi Sharma and I am from grade 12th. I want to become a chartered accountant. Good morning everyone. I am Shakti Sharma and I also want to become CA, chartered accountant. भाई ये लड़के बैठे हैं क्या? आपको कुछ नहीं बनना, बस आप पढ़ाई करके टाइम पास करोगे क्या? बिजनेसमैन बनना चाहोगे मोस्टली हो, या कुछ और भी करना है जिंदगी में? किसको? बुलाओ आज सभी शांत हो गए बच्चों। My name is Sarvashni. I am a student of class 9. I want to become a software engineer. अभी यहाँ सभी का एम ना बहुत हाई है। कोई ये नहीं कह रहा कि सर हम वैसे दुकान मैंने बहुत से लोग आते हैं हम तो दुकान खोल लेंगे हम तो हम लोग यहाँ वो भी कर रहे हैं हाँ बच्चे हाँ बच्चे अच्छा आप आ गए देखो पहले देखो सब बैठ जाओ मैं इस बच्चे को बुलाऊंगी शांत हो जाओ कभी शांत आप आ जाओ बाबू आप आ जाओ आप क्या बनना चाहोगे बड़े होकर भाई आर्मी में जाएगा बॉर्डर की सेवा करेगा ये बहुत बड़ी बात है आर्टिस्ट बनना चाहोगे आर्टिस्ट भी अलग अलग होते हैं तो कौन से उसमें जाओगे आप आर्टिस्ट इसमें वाओ बहुत अच्छी बात है तो मैं ये चाहूंगी जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं मैं ये चाहती हूँ कभी 10 साल बाद अगर मैं आप लोगों से मिलूं तो आप उस लेवल तक तो पहुंच ही चुके होंगे 10 साल बाद तो काफी कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो 10 साल बाद या 15 साल बाद कोई ना कोई अचीवमेंट ले चुके होंगे तब तक तो आप मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगी कि भाई आप कामयाब हो और जिसका जो भी ड्रीम है वो पूरा भगवान करे उनको मिले और सबसे ज्यादा मनुष्य क्या है इसका नाम भूल जाती मनुष्यरी भाई ये सबसे अच्छी आपके पूरे स्कूल में अगर मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बच्ची लगी है वो मुझे मनुष्य लगी है इसका ना एक अलग ही ट्रैक है वो जो भी कहती है बिंदास रहती है बेधड़क बोलती है होते तो सभी है लेकिन इसका बात करने का तरीका इसके सपने और इसके अंदर जो टैलेंट है ना वो हर बच्चे के अंदर मैंने नहीं देखा देखो एजुकेशन एक अलग चीज है एजुकेशन के अलग वो उस बच्चे के अंदर जो हुनर मैंने देखा है वो आध्यात्मिक हुनर मैंने उस बच्चे के अंदर देखा है उसको वो चीज आती है जो शायद हम नहीं सीख पाए आज तक हमसे हनुमान चालीसा आज तक नहीं आती पढ़नी और उस बच्चे ने तुरंत सुना दिया शिव तांडव जो अपने आप में बहुत कठिन है वो बहुत बड़ी बात है उसको पहली बात तो आप बोल ही नहीं पाएंगे संस्कृत ही नहीं आती है बच्चों से संस्कृत तो छोड़ो हिंदी तक नहीं आती है तो संस्कृत के कठिन शब्दों का बोलना और वो भी एक लय में ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है तो इसके लिए तो मैं जरूर कहूँगी सर इसी तरह और भी बच्चे भाई इसके लिए तो मैं फिर दोबारा बोलूँगी आप सब इसके लिए ताली बजाएं अच्छा ये जो छोटी बच्चे हैं हमारी छोटे लड़के या लड़कियाँ इनको गुड टच बैड टच के बारे में पता है मनुष्य आप बताइए पहले मनुष्य को बुलाएंगे फिर आपको बुलाएंगे कि अगर हम किसी के ऐसे कर रहे तो ठीक है पर अगर ऐसे कर रहे तो गलत है और अगर हम किसी के
अलग ही टैलेंट है इस बच्ची का। आप आ जाइए। हाँ, एक मिनट। देखो मैं बच्चे को एक करके बुलाऊंगी और देखो आप ही के स्कूल के बच्चे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आप जो भी दिमाग में आ रहा है तब बोलो, जब भी बोलना है बोलो। सबसे बड़ी बात यह है इस बच्चे ने यहाँ आकर हिम्मत की, माइक भी हाथ में लिया, क्योंकि हर बच्चा माइक भी नहीं दे पाता है, ना ही मंच तक आ पाता है। तो इस बच्चे के लिए ताली जरूर है कि इसमें इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ तक आया और माइक पे लिया। आप आ जाओ। ये बच्ची है कौन? आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए और हमें सबको प्यार करना चाहिए। हमें किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमें किसी को चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। खुद ने भी एक हालांकि जो बैटल एक अलग वो था, लेकिन इस लड़की ने खुद ने भी बताया कि एक तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। गुड टच बैड टच के बारे में कौन बताएगा? अच्छा आ जाओ, आप दोनों आ जाओ। अभी टॉपिक चल रहा है गुड टच बैड टच। आप तो कोई फीडबैक करेगा तो ठीक है और नीचे करेगा वो पूरी आदत होती है। बहुत सही। बात कही है वो वाकई में शायद आप भी हंस रहे हो। वाकई बहुत अच्छा होगा इस बच्ची ने। अच्छा बच्चे आप बताओ। किसी को अकेले नहीं चलाना चाहिए। हमको बात क्लास की बात बाद में। अच्छा एक जो लड़की मैंने बालू में बैठी वो जो डांस किया था क्या नाम था? हाँ वो आ जाए जरा बाहर। हाँ बच्चे अभी हाँ मैं बताऊंगी। पहले इस बच्चों से पूछ ले क्योंकि इन बच्चों को वाकई में बहुत पता है, काफी मेरे मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा इन बच्चों को पता है। आप बताओ बच्चे गुड टच और बैड टच आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई ये गुड टच है? कैसे पहचानेंगे आप कि भाई इसने हमको अगर उसका मन अच्छा है उसमें गुड टच क्या है बैड टच क्या है, कैसे पहचानोगे आप? तो आप बताओ। मैं कुछ बताऊं? चलो अच्छा आप मुझे छू के बता दीजिए गुड टच है बैड टच। अच्छा माइक पे आप बता दो तो मुझे बता। इस लड़की ने वाकई में जो मुझसे बात कही है ये सबसे अलग हटके के लिए सिंपल सी इस एक लाइन में इसने सारी बातें खत्म कर दी। इसने ये कहा कि गुड टच वो होता है जहां हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और बैड टच वो होता है जहां हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए लेकिन हम वहां हाथ लगाते हैं। पूरी बात इस लड़की ने खत्म कर दी। मैं वाकई में बच्चे सैल्यूट आपके लिए मैं खुद मार के जाऊंगी यहाँ से कि इतनी बड़ी बात इन दो शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए भी। तो भाई मैं तुमको सैल्यूट तो जरूर मारूंगी। इस बच्ची ने पूरी बात एक लाइन में खत्म कर दी, मतलब मौका ही नहीं दिया कि मुझे कुछ बोलना है इसके आगे। अब मैं बताती हूँ लड़कियों में एक टैलेंट होता है, वो लड़की कोई भी है चाहे छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी हो कोई भी हो, वो इंसान की नजर देख के पहचान लेती है कि उसकी नजर उसको किस तरीके से देखती है। पहचान लेते हो ना नजर से। दूसरा उसका स्पर्श आपको बता देता है कि वाकई में इसका जो स्पर्श इसने हमें किया है, चाहे वो स्पर्श कहीं भी किसी तरीके से आप स्पर्श से पहचान लेंगे कि इसकी मंशा क्या है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अगर किसी ने आपके सिर पे हाथ लगाया है, हाथ सिर पे ऐसे हाथ फेरा, वो गुड टच है। अगर वो पीठ पे हाथ फेरा है, कहीं
ऐसे अंग पे आपने हाथ लगा रहा है वो गलत है। हाथ मिलाना ठीक है। दूसरा, अगर लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके माता पिता के अलावा उसके प्राइवेट पार्ट को, क्योंकि वो नहलाते हैं बच्चों को, उसके अलावा उसको कोई नहीं छू सकता। पूरे शरीर के अंग को कोई नहीं छू सकता। अगर कोई आपको छेड़ा है इस तरीके से, इसका मतलब वो बैड टच है। अगर आपके साथ कभी भी इस तरह की कोई हरकत होती है, अपनी मम्मी से तुरंत बताएं। मैंने देखा है लड़के भी बहुत शिकार हो रहे हैं इसके, बहुत शिकार हो रहे हैं। उनको बिना वजह टच करना, मतलब उसको इतना ह्यूमिलेट कर देते हैं बच्चे को कि मैं बताऊँ क्या क्या हरकतें करते हैं उनके साथ। उनके कपड़े उतरवा देते हैं, छोटे बच्चों के फोटो तक खींच देते हैं उनके। क्या ये सही है? कोई अगर आपके कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है, ये गलत है। ये सही बात है? कोई आपके कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है, गलत है ना? हाँ, वैसे आगे में ये सेशन पूरा निकल जाएगा, कुछ दिख रहा है अगर किसी को कोई ऐसा सवाल मुझसे पूछना हो कि जो वाकई में पूछने के योग्य भी है और आपको जानकारी भी चाहिए उसके बारे में, कि मैडम हमें इसके बारे में पता नहीं है, हम आपसे इस बारे में पूछना चाहते हैं, बताइए, कोई भी पूछिए। हाँ जो आ गया जो Maintain silence, please. अगर कोई भी हमें लाल मतलब ब्लैक कपड़े से हमें इतना चिढ़ाता है और हमें मारता है तो वो कर रहा है, आप शिकायत कीजिए किसी से भी। लेकिन अगर आपके सुधार के लिए अगर आपको डांट रहा है हल्का फुल्का या थप्पड़ वगैरह मार दिया, तो ये बहुत छोटी चीजें हैं। आप शायद आपको नहीं पता, हमारे जो टीचर होते थे और अगर हमारे पेरेंट्स भी, ये मोटा डंडा होता था, ये मोटा डंडा, और उसी से पिटाई होती थी हमारे स्कूल में, और हाथों पे लगते थे वो, ऐसे नहीं, ऐसे लगते थे। तो आप तो शायद थप्पड़ भी नहीं झेल सकते, डंडों की तो बहुत दूर की बात है। और पेरेंट्स पता क्या कहते थे, और मारो इनको। और डर ये लगता था कि अगर हमने घर जाके बता दिया कि आज हमारे स्कूल में पिटाई हुई है, घर जाकर और पिटना फिर हमको। तो हमारे साथ तो बहुत उल्टा हुआ है। मैं कहती हूँ आप तो बहुत अच्छे टाइम पे पैदा हुए हो कि अगर आपको किसी ने टच भी कर दिया तो पेरेंट्स आ जाते हैं लड़ने के लिए। हमारे पेरेंट्स को अगर पता चलता था कि इनकी आज पिटाई हुई है स्कूल में या डांट पड़ी है, तो उससे दुगना घर पे पिटाई होती थी और दुगनी डांट। तो आप तो भाई, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्कूल मिला। 1098, it is child helpline number. 108, it's an ambulance number, and 1090, it's a women's helpline number. These helpline numbers are ready, always should be ready with you, so that you may feel confident wherever you are moving in the India. It is not only working in Uttar Pradesh, it is working, I think, throughout India. Am I right? It is working throughout in India. GG. So it's basically a very great information. As we have learned lot of things, you might have felt lot of confidence also. Last but not the least, from teachers end, if any question is there in your mind, you can ask the question. Sir, एक नंबर बढ़ा दिए 1930. Cyber crime number 1930. So by this time you have understood that in society, the whole aim is to build a beautiful society. A society where all human beings should have a respect. For seniors, for juniors, there should not be any kind of malpractices, either in from your mind or in your physical part. So this is how the certain measures are being taken by the government, so that we can prevent such kind of an act at anywhere which is happening. So from the team of Mount Literacy School, from teachers and from student and from the management end, I am very much thankful to the team of Alka Yadav ma'am. Please give a great applause to 1 minute clapping for them. Standing clapping, very good. And I believe in coming future also, now they have become a part of our school. So whenever we will be having any kind of a function or so, we will definitely like the way she have given their interest, the minute observation which they have felt for our school is remarkably touching, and we believe that ma'am will carry the same information to others areas also where we cannot go,
so she can present Mount Literacy School that no, because she has seen our school in every respect, in the discipline, in the knowledge and everything. So definitely it is a great part for us, and definitely we thank once again from the management team and others team. Now what I want that seniors, yes. So thank you so much for respected principal sir for giving a thank you note. Now I will request Shalvi and Shrishti to please escort the entire team to the principal office. Thank you so much, ma'am. May I have the standing ovation for the entire team, please?